Today we will be just have some introduction about the subject that I will be going to teach you in our next classes. I will just elaborate about the syllabus that we will be going through. Okay. So let me just share my screen so that I can you can able to see what we will be going through in the next classes. Okay, so I hope you are able to see the screen. This is the syllabus of our subject, that is building construction, and we have, of course, as usual, 4 units. And in first unit, that we will be studying about the two topics that are mainly classified in as foundation and machinery. Okay, the next one is unit two. That is, it is also classified into two basic concepts. That is formwork and scaffolding. The second one is building finishes. And the third unit is doors and windows, damp proofing and waterproofing. And the fourth unit is floors and roofs, and acoustics, sound insulation, and fire protection. This subject is very very easy, and this very totally a theoretical subject. Okay. Before starting the first topic that I will be teaching you, that is a preliminary investigation of soil. So first you should know that what is foundation. Okay, you have mostly seen the buildings in nearby your area, and whenever the construction of a building starts, and you see that some soil has been disposed of, and the construction begins, and then the some kind of structure has been developed. Okay, so in that case, we just have to create a ground layer with the help of soil. Okay, and concrete like structure we have to construct, so that your the superstructure of the building can be easily, the load bearing capacity can be done properly. So I will just share another pic, so that you can able to see that what is going to be happen. Okay, so yeah, I hope you are able to see. So I'm just talking about this one. I will just take this example. Okay, whenever the construction of a building starts, okay, so first you have to do what? You have to just digging का मतलब ये है आपका कि आपको खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है ना? So फर्स्ट आप खुदाई करेंगे, आसपास का एरिया जो क्लियरिंग करेंगे, सॉरी, और बिल्डिंग का जो आपका ये फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है, आप आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप सॉइल की यहाँ से खुदाई जब आप करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक सीमेंट कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लोअर लेवल पे, ठीक है, जो आपका बेस लेवल जो होता है, तो ये बेस पे आप एक सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ताकि जो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग आपका है उसका पूरा का पूरा लोड आपका इसके ऊपर आए। सो इसलिए आपको जो फाउंडेशन जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से बनानी पड़ती है, ताकि पूरा का पूरा बिल्डिंग का जो लोड है आपका इस पूरे के पूरे आया, क्योंकि आपका जो बिल्डिंग का जो कॉलम्स का जो बीम्स का जो लेंटर्स का पूरा जो लोड है वो आपका इसके ऊपर आएगा। तो इन दैट केस यू हैव टू डिजाइन इट लाइक दैट। अच्छा, आपकी फाउंडेशंस भी काफी टाइप्स की होती है, तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट यू शुड नो दैट हाउ डज इट लुक लाइक। अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, तो ये भी एक फाउंडेशन आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपका रेडी हो रहा है। देन यू विल सी देयर मेनी एग्जांपल्स ऑफ फाउंडेशन, यू कैन सी हियर इट एज वेल, कि यहाँ पे एक फाउंडेशन, यहाँ पे आपने खुदाई करने के बाद और आपने सोइल का क्लियरिंग रबिंग किया, मतलब उसको क्लीन करके और फिर आप उसको फाउंडेशन बना रहे हैं। देन अगर मैं इसमें स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो ये आपका कोई मॉल है, ठीक है ना, ये आपका पार्किंग स्लॉट बन रहा है ठीक है, तो ये आपकी पार्किंग स्लॉट है, तो ये आपका सॉरी, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ये सुपर स्ट्रक्चर है आपका, और ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका फाउंडेशन हो गया।
अब इसके नीचे आपका जो सीमेंट कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर इनने बना रखा है, ये आपका पूरा पूरा फाउंडेशन है और इसी के ऊपर आपका पूरा बिल्डिंग का जो लोड है वो एग्जर्ट रहेगा। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि आपका फर्स्ट टॉपिक दैट यू हैव, दैट इज दैट इज first one is site investigation, or you can say it as preliminary investigation. I will just share it again. So, what is a site investigation, or you can call it as a preliminary investigation? Okay, so site investigation is kind of, you can call it as exploration. इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे भी कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब आपका ये है कि यहाँ पे जिसको हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि फरमाइश करना, तो वो एक तरह का देखना होता है कि क्या हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या यहाँ पे फिजिबल है। लेकिन वहां पे आपकी सॉइल कैसी है, आपकी वहां पे मिट्टी कैसी है, अगर वहां पे पानी ज्यादा ठहरता है तो वहां पे हमें कौन सी मिट्टी डालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको एक तरह का चेक करने का तरीका होता है कि आप उसको देखते हो और वहां की आपकी सॉइल को देखते हो और जो वहां पे नेचुरल सॉइल डिपॉजिट्स हैं। ठीक है। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वहां से सॉइल का सैंपल लेके जाते हो और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो। ठीक है। और कुछ टेस्ट आपके ऐसे भी होते हैं कि आप साइट पे भी टेस्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो आपकी साइट इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट आपकी जो स्टेज होती है वो होती है साइट रिकॉग्निसेंस। तो साइट रिकॉग्निसेंस का सिंपली जो मीनिंग होता है कि इसका मतलब होता है इंस्पेक्शन करना। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो आपका जो है स्टेप होता है इंस्पेक्शन करना। सो यू हैव टू डू दी साइट इंस्पेक्शन और यू कैन कॉल इट एज साइट इन्वेस्टिगेशन। तो इस स्टेज में आप क्या करोगे, जो मैंने पहले बताया कि आप उसको विजुअल इंस्पेक्शन करोगे, आप उसको देखोगे कि क्या ये साइट हमारे लिए फिजिबल है, क्या हम यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, उसका एक टोपोग्राफिकल और जियोग्राफिकल फीचर देखी जाएंगी साइट की। आप देखोगे कि इसके आसपास कोई इश्यूज तो नहीं है, जहाँ पे ज्यादा बारिश तो नहीं होती है। ठीक है। तो कई सारी चीजें इसमें चेक करने के बाद ही आप उस साइट को देखते हो। ठीक है। और इसमें आप क्या क्या चीज देखते हैं जो आपको देखिए, आप देखेंगे फर्स्ट आपका आता है ड्रेनेज। ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि आपका कहीं पानी तो नहीं रुकता है तो आप ड्रेनेज वगैरह देखेंगे, कहीं पे गड्ढा वगैरह तो नहीं है या कहीं पे डंपिंग यार्ड तो नहीं बने हुए हैं। ठीक है। दूसरा आप क्या देखोगे, आप देखोगे जो ग्राउंड वाटर जो टेबल है, जो आपकी ग्राउंड वाटर टेबल जो होती है जो जमीन के नीचे होती है, क्या वहां पे आपको पानी की फैसिलिटी है, क्या आपको पानी वहां पे मिलेगा अगर वहां पे आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, आर यू एबल टू गेट दी वाटर। थर्ड वन आपका है कि स्प्रिंग स्वैम्प जो नहीं है वहां पे, मतलब वहां पे कई सारी पानी की दिक्कतें तो नहीं है, वहां पे पानी लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको सब आपको चेक करना पड़ता है वहां पे। देन आपका जहाँ पे आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करोगे, जैसे जो काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपकी जो होती है, यू विल कॉल इट एज हाई राइज बिल्डिंग्स, एंड जो आपके ब्रिजेस जो होते हैं, तो वहां पे आप देखोगे वहां पे आपका हाई फ्लड लेवल मार्क्स तो नहीं है, अगर जहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ आने की आशंका होती है तो वो तो नहीं है, तो आप वहां पे बनाने पे आप उसको अवॉइड करेंगे। देन आपका क्या रहता है कि प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन एंड नेचर ऑफ द सॉइल, आपका वहां पे ज्यादा मतलब घास फूस तो नहीं है या आपका श्रब्स एंड बुशिस तो नहीं है, तो वो भी आप उस चीज को चेक करेंगे। दूसरा आपका लास्ट ईयर्स का आपका जो पास्ट रिकॉर्ड जो है, क्या वहां पे लैंडस्लाइड कभी हुई है, क्या फ्लड वहां पे आया है, यहाँ पे या फिर वहां पे क्रैक्स वगैरह कभी हुए हैं आपके जमीन पे, या कहीं वहां पे अर्थ पे कभी आया है उस रीजन पे, तो वो चीज भी आप उसको देखेंगे। देन यू विल स्टडी दी एरियल फोटोग्राफ। तो आप ऊपर से देखेंगे, अभी तो हमारे पास जीपीएस अवेलेबल है, गूगल मैप के थ्रू आप देख सकते हैं है ना। आप पूरा जहाँ पे आपको साइट, जैसे ये एग्जांपल है तो ये आपने यहाँ पे साइट कहीं पे आपने कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर आ रही है, यहाँ पे ये लैंड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे ये चीज है, तो या क्या क्या ये जो हम प्रोजेक्ट जहाँ पे जो बिल्डिंग हम बनाएंगे क्या वो फिजिबल है, तो वो चीज भी आपको देखनी जरूरी है। उसके बाद आप डीप कट देखेंगे या कोई स्ट्रेटिफिकेशन तो नहीं हो रही है सोइल की, जहाँ पे आपकी जो मिट्टी है वो धस तो नहीं रही है कहीं पे। ठीक है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे इस चीज में। ये आपका हो गया फर्स्ट से जो यू कॉल इट एज
साइट रिकॉग्निशंस। ओके, देन आपका आता है प्रीलिमिनरी साइट एक्सप्लोरेशन, जो आपका सिलेबस में है। प्रीलिमिनरी साइट एक्सप्लोरेशन, इस केस में आपका क्या रहता है कि ये आपका नॉर्मली रहता है कि जहाँ पे आपके स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या जहाँ पे आपके लाइट स्ट्रक्चर्स रहते हैं या हाईवेज रहते हैं या एयरफील्ड रहती है, ठीक है, जो आपके ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे आपका कहीं पे एयरपोर्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जैसे कहाँ पे रोड आपको बनानी है, या कुछ छोटा मोटा ड्रोन बनाना है, या आपको कोई एक छोटी सी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो दैट शुड नॉट बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। तो वहां पे आप प्रीलिमिनरी साइट एक्सप्लोरेशन करते हैं। उस केस में आप क्या करते हैं कि आप वहां पे एक अप्रोक्सीमेट पिक्चर उसका देखते हैं, कैसे आप वहां की जो सॉइल है वो आपकी कंडीशन देखते हैं सॉइल की, ठीक है ना, वहां पे सॉइल कैसी है, वहां पे सॉइल में मॉइस्चर कितना है, पानी कितना है, अगर वो ज्यादा सिल्टी है या क्ले आपकी सॉइल है या उसमें पानी ज्यादा है, तो आप उस केस में क्या करेंगे वहां पे आप करेंगे कि आपको सोइल वहां पे रिप्लेस करनी पड़ेगी वहां से खोद के, ठीक है। आपने कई बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि जब आपकी साइट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो डिगिंग करते हैं। वो डिगिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ सॉइल जो आपकी जो ऑलरेडी नेचुरल अकरिंग जो सॉइल होती है आपकी, वहां पे वो चेक करते हैं कि क्या हम ये सॉइल यूज कर सकते हैं। अगर उस सॉइल में काफी ज्यादा कंकड़ और पत्थर वगैरह है तो उसको सेग्रीगेट किया जाता है और वो वही सॉइल आप यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर दी टेस्ट इन लेबोरेटरीज। तो आपका ये आपका आ गया है प्रीलिमिनरी साइट एक्सप्लोरेशन। तो आपको ये सब के बारे में पता होना चाहिए कि आप एक सिंपल फील्ड टेस्ट भी वहां पे करते हैं, वी कॉल इट एज पेनिट्रेशन मेथड। बस इसके नाम याद रखने हैं आपको, साउंडिंग मेथड्स, जियोफिजिकल मेथड्स। तो ये आपके ऑन द साइट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि आप सॉइल की जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है, या उसकी जो स्ट्रेंथ या उसकी प्रॉपर्टीज है, आप उसको चेक कर पाए, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि ये साइट पे आपकी जो मिट्टी है उसको आप देख रहे हैं, इसको रोल करके कि इसमें कितना मॉइस्चर है, गीली मिट्टी तो नहीं है ज्यादा। तो ये सब चीजें आपका देखने की चीजें हैं। तो इसमें आप क्या क्या चीजें देखते हैं नेमली, तो मेन आपकी 6 चीजें जो आती हैं आपकी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप साइट एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो उसमें आपका क्या रहेगा प्रीलिमिनरी साइट एक्सप्लोरेशन में, आपका क्या रहेगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ सॉइल्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या चीज है आपकी सॉइल की, आपकी मिट्टी जब उसके ऊपर लोड पड़ेगा, या बिल्डिंग का जो जो फाउंडेशन का लोड है, फाउंडेशन बन गई आपकी, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, तो क्या वो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उसका पूरा का पूरा लोड बियर कर पाएगी। सो ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में काउंट होती है। देन आपका ग्राउंड वाटर टेबल की क्या पोजीशन है वहां पे, ठीक है, वहां पे जो ग्राउंड वाटर है ज्यादा नीचे तो नहीं है, आप जब खुदाई करेंगे तो आपका पानी जो है वहां पे लीक तो नहीं होगा, या वहां पे ड्रेन की कंडीशंस कैसी है, ठीक है। आपका जो सोइल स्टेटा स्टेटा जो है, आपकी जो सोइल कहाँ तक सीमित है, कितनी डेप्थ तक है, ठीक है। अच्छा, सोइल जो आपकी जो मिट्टी है उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या चीजें उसमें मिली है आपको। देन आपका जो आपका हार्ड स्ट्रेटम जो होता है, जहाँ पे आपका सोइल काफी हार्ड हो जाती है अर्थ क्रस्ट में, वो ग्राउंड लेवल से कितना दूर है। देन आपके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कुछ होती है जो आपको सैंपल में देखनी पड़ती है। तो ये आपका फर्स्ट जो स्टेप हुआ आपका साइट रिकॉग्निशंस, देन आपका प्रीलिमिनरी साइट एक्सप्लोरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन, एंड फोर्थ वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सो इस ये जो आपके दो ये पॉइंट्स है, इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि आपका क्या होता है मेन। तो इसमें आपका आप इसमें डिटेल्ड साइट एक्सप्लोरेशन करते हैं। आपने पहले पहले क्या किया, प्रीलिमिनरी आपने आंखों देखी करी वहां पे जाके, बट उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जब आपको हैवी स्ट्रक्चर जब बनाने हैं तो उस केस में आप डिटेल्ड साइट एक्सप्लोरेशन करेंगे। वहां पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई बड़ा मॉल बन रहा है, ठीक है, तो उस जैसे कोई डैम बना रहे हैं, ब्रिज बन रहा है, कोई बड़ा ब्रिज है, या कोई काफी ऊंची हाइट की बिल्डिंग्स हैं वो आप बना रहे हैं, तो उस केस में आप डिटेल्ड करेंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आपको वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको टेस्ट करने पड़ते हैं। तो एक इन सीचू का आपका मतलब होता है कि आप साइट पे जाके, मतलब एट एट द स्पॉट जो सिचुएशन है आपकी, वहां पे आप साइट पे जाके आप टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ टेस्ट के नाम है, एक वेन शेयर टेस्ट है,
एक प्लेट लोड टेस्ट है, ठीक है, तो ये आपका टेस्ट रहते हैं। देन सॉरी, देन आपके जो लेबोरेटरी में जो आपके टेस्ट रहते हैं, दैट दैट वी कॉल इट एज परमेबिलिटी टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ आपके टेस्ट हैं, तो आपको थोड़ा बहुत रिमेंबर करने जरूरी है। देन आपका फोर्थ वन आता है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ सॉइल, सब सॉइल एक्सप्लोरेशन। आपने सब टेस्ट कर लिए, आपने साइट को इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि आपने कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करे हैं। उस केस में आपकी सॉइल की कैपेसिटी कैसी है, आपकी सॉइल किस तरह की दिखी है, आपका जो वाटर टेबल है वो कैसा है, वो सारी की सारी चीजें आपकी इसमें कंक्लूड हो जाएंगी। आपका जो आपने आपको यहाँ पे किस तरह की फाउंडेशंस आपको लगाने की जरूरत है, ठीक है, तो ये आपका एक पूरा पूरा जरूरी है। तो ये जो आपकी जो पूरी फिगर है, ये रिपोर्ट को एक पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमने ये सैंपल यहाँ पे लिए, इनकी फोटोग्राफ लगा दी यहाँ पे, और हमने ये टेस्ट करे हैं और इनका ये वैल्यू आया है, और वी रिकमेंड कि ये आपको फाउंडेशन यहाँ पे लगानी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक दैट यू विल कॉल इट एज साइट एक्सप्लोरेशन, और यू कॉल इट एज साइट इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। So I think for today, I think it is enough. I think maybe. So we will talk about the next topic in the upcoming lecture. Okay. If any